मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, पहले आ रही थी कि अभी जस्ट शुरू हुई? मैं बीच में बात कर रहा था तो आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। अच्छा, ओके। सो वे वर वी, हम कहाँ पे थे? हम्म सो लास्ट टाइम वी हैड सीन एक ओवरव्यू था, लाइक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड यू नो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लिया था हमने। एंड देन वी सेड कि हमें रेप्लिकेशन भी दो ही चीजें होती हैं, जो रेप्लिकेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन, like through transcription and translation. And prokaryotes, we said it's in prokaryotes the transcription and translation usually go in hand. Like जैसे एक शुरू हुआ ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे we don't have a specified or defined nucleus, so the content is free in cytoplasm. So as soon as the mRNA is synthesized under the process of transcription, the RNA straight away starts, synthesizing amino acid sequences with the help of ribosomes. So it's coupled. It's coupled transcription and translation in prokaryotes. Those cells which do not have specified nucleus or which do not have true nucleus. But in eukaryotes, it's a bit different because the transcription takes place in the nucleoplasm or nucleus, and from there the RNA comes out of it and gets attached with the ribosomes in cytoplasm. So it has to come out of nucleoplasm to the cytoplasm, and there it attaches with the ribosomes, and with the help of ribosomes and the amino acid pool, it now synthesizes the amino acid sequences, which are usually known as protein molecules. So, but we were like, we need to understand first the replication of these nucleic material, because when a cell divides into two, sorry, when it tries to become replicate itself, it has to duplicate its all the genetic material, and then the duplicated portion will now be transferred to the newly formed daughter cells or newly formed cells. So what happens, because the protein synthesis is a process which occurs regularly in a living cell, when some kind of enzyme, some kind of protein, or some proteinaceous molecule or compound is needed for its metabolic activities. But when a cell divides into two, when it reproduces, when it replicates or divides, then you need to have your genetic material to be duplicated, so that the equal amount of genetic material will be distributed to the newly formed cells. So this, when the process includes the equal amount of DNA to be distributed, we call it equational cell division. We had tried to understand the little about the cell cycle too, where the S phase is the phase where the molecules are replicated, they are synthesized newly, and then the mitotic or meiotic division or phase of the cell cycle comes into play. So यदि सेल को डिवाइड होना है तो उसे पहले अपने न्यूक्लिक मटेरियल को डबल करना पड़ेगा या डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ताकि वो नए फॉर्म जो हो रहे हैं सेल्स उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, यदि ये सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम गमिट्स फॉर्म करते हैं, तो गमिट्स फॉर्म करते हैं तो जब डिफरेंट सेक्सेस के गमिट्स फॉर्म होते हैं, तो वो दोनों सेक्सेस के गमिट्स जब यूनाइट होंगे, देन अगेन द जेनेटिक मटेरियल विल डबल। इफ एट ऑल गमिट फॉर्मेशन में यदि हमारे सेल ने इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल को डिवाइड किया, यानी डुप्लीकेट होने के बाद सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल यदि गमिट्स में भी आ जाएंगे, तो जब गमिट्स यूनाइट होंगे तो you would get the double amount of nucleic material. So that way, in meiosis, what happens in the formation of gametes and the union of gametes are involved in meiosis. So the gametes will be having the half of the number of the
DNA molecule. See the beauty of evolution. हाफ मतलब किस हाफ को हम वो करेंगे, कौन से हाफ को हम गमेट्स में भेजेंगे. So that's why our molecule, DNA molecule, is double stranded. One strand is called half of it, another strand is the other half of it. So half of the genetic material, which is nothing but the DNA molecule, will it will de-strand itself, and one strand will go to one gamete, another strand will go to another gamete. And when such a way in female also it happens the same way, male and female respectively, it happens in the same way. And these gametes, when they unite at the time of fertilization, this half of the genetic material is one strand of the sperm, and one strand in the ovum will unite, will fertilize to form a new individual with the same amount of nucleic material, that is the same amount of DNA, that is two strands of DNA. So the first and the foremost thing is that it has to propagate its life, its form, in terms of living in the environment, living in the surroundings. So for the division, there needs a stimulation, like presence of something will stimulate it to divide. Usually when we are like developing, when a sperm and ova will fuse and fertilize, and then the zygote is formed, and then when the zygote keeps on dividing itself to an individual, to form an individual, then usually equational divisions occur. But for the gamete formations, we have reductional division, in which half of the genetic material has been transferred to the newly formed cells, and those newly formed cells, which are called gametes, they would unite, fertilize, and form a zygote with the same amount of genetic material, that is two strands. So the first and the foremost thing which we would like to understand is the replication or the duplication of the genetic material, and nothing but the duplication of DNA molecule. So हम last time हम ये बात कर रहे थे कि जो prokaryotes में usually in majority you find the circular DNA. So when the prokaryotes which do not have specific nucleus to contain this nucleic material or the DNA molecule, the DNA molecule is freely available in the cytoplasm. So what happens? It is usually circular, and it is freely available in the cytoplasm. So from which point the DNA has to start its replication, that has to be decided. Because if it is a linear molecule, one end we will start and will end up at the second end. But if it is a circular molecule, then you need to find a point from where the replication or the duplication of DNA would start. So I think we had already discussed in last class about the modes of replication in prokaryotes, like the sigma format and the delta format, theta format, and the D loop format. So these are different types of formats, the different types of ways, different methodologies, different methods of duplication in prokaryotes, in circular DNA, in circular nucleic material. So, apart from that, we have already touched a portion which is called origin of replication, ORIC, which is usually rich in cytosine content, and those portions are having 13. There are two types of. We had already discussed, that's consensus and conserve. Conserved means the everything as it is present, and consensus means the sequence is there, but it might be interfered by some other sequences or nucleoside bases, nucleotides, or base pairs. If some they intermittently enter into the sequence, but the sequence will have the same effect as the earlier sequence was having. So those were called consensus sequences. So there are so many of consensus sequences and conserved sequences. Conserved means the sequence is completely as it is. And in that also we say, if it is 100%, we say highly conserved. If it is some portion of it is missing, which may not be encoding for some important thing, then we would call it as moderately conserved. So that way, conserved and consensus sequences, you understand. So what happens? We had the molecule
which I think I had already asked you to go through the replication process in some text and just get to know what are the enzymes or what are the molecules which participate or which carry out the complete replication. तो किसी ने इसके बारे में कुछ पढ़ा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रेप्लिकेशन में? कोई कुछ कह नहीं रहा। हेलो। ओके, किसी ने मतलब अभी तक पढ़ा नहीं थोड़ा सा भी? तो हम फिर से एक काम करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि जस्ट प्लीज गो थ्रू द content of DNA replication. Of course, I'll be providing you the content, the text material also, and a videograph also, which would, which would clear your view of replication. So, अब ये कहा जाता है, अब कुछ चीज़ें, अब फिर हम आज भी फिर थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी लेंगे कि सबसे पहले जो दो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, इसके बारे में हमने 5 और 5 प्राइम की भी बात की थी, 3 और 3 प्राइम की भी बात की थी, और हमने कहा था कि डीएनए मॉलिक्यूल्स एंटी पैरेलल हैं, यानी एक इस तरफ से है तो दूसरा ऐसा है। इट्स एंटी पैरेलल मीन्स जो 5 का डायरेक्शन 5 3 का डायरेक्शन था, दूसरे स्ट्रैंड में वो उल्टा रहता है, 3 5 का डायरेक्शन रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंटी पैरेलल। और नॉमेनक्लेचर 5 और 3 का नॉमेनक्लेचर इसलिए आया है क्योंकि मैंने बताया था कि शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन एटम्स जो अटैच होते हैं फॉस्फोरिलेशन के लिए, जो बैकबोन बनाता है उस स्ट्रैंड का, तो वो 5th और 3rd कार्बन से अटैच रहता है। तो एक एंड पे हमको 5th कार्बन फ्री मिलेगा और दूसरे एंड पे हमें 3rd कार्बन फ्री मिलेगा। बट इन सर्कुलर DNAs we don't find that kind of thing. But once the strand is been separated, we can see which one is which side has got the five end molecules and which has 3 end setup. So that way मैंने भी एक और बात बताई थी कि याद रखने के लिए कि ज़्यादा से कम, यदि किसी हाइट पे कोई चीज़ रखेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। द सेम वे द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑल्सो गोज ऑन, लाइक 5 बड़ा है 3 से, आप ये समझ के चलिए 5 to 3 डायरेक्शन में ही हमेशा रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है। एंड सर्कुलर डीएनए में क्योंकि कोई एंड नहीं है, तो वी नीड टू हैव अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर ओरिसी नाम से भी जाना जाता है उस पोर्शन को, जहाँ पे 9 मर्स और 13 मर्स हैं, 11 9 मर्स हैं, 11 13 मर्स हैं और 3 9 मर्स हैं। तो 9 मर्स मतलब 9 नाइट्रोजन बेसिस का एक फ्रैगमेंट, उसको मर से पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर्स। डीएनए मॉलिक्यूल मोनोमर क्या है? एक नाइट्रोजन बेस, वो एक मोनोमर है। ऐसे ढेर सारे नाइट्रोजन बेसिस यानी बेस पेयर्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स मिलके हमें एक पॉलीमराइज्ड फॉर्म में मिलता है डीएनए मॉलिक्यूल। तो जब 9 बेस पेयर्स को हम कंसिडर करेंगे तो उसको 9 मर कहेंगे। जैसे 10 है तो 10 मर, हालांकि इसके और भी नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन वी यूजुअली कॉल देम एज 13 मर्स एंड 9 मर्स। एंड इनका अपना एक नंबर है, लाइक 3 9 मर्स रहते हैं और करीब करीब 11 13 मर्स रहते हैं, या फिर तो ये क्या है कि एक ही जगह पे डीएनए मॉलिक्यूल के सर्कुलर में किसी एक जगह पे दिखते हैं, विच makes it possible। ये जो 13 मर्स और 9 मर्स हैं, ये they have got those sequences which resemble with the sequences which a enzyme which is trying to polymerize it। एक एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल को अभी नया डीएनए मॉलिक्यूल या फिर नया स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, वो कहाँ अटैच हो, कहाँ से अपना काम शुरू करे, वो इसी जगह पे अटैच होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिसी, या फिर जहाँ पे 13 मर और 9 मर्स का सीक्वेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो सीक्वेंसेस जो हैं ये हेल्प करते हैं उस मॉलिक्यूल को अटैच करने के लिए, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के पास भी अपना बेस पेयर्स की एफिनिटी होती है, एंड वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि apparatus सेटअप मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पॉलीमरेज apparatus या फिर पॉलीमरेज पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज apparatus मॉलिक्यूल्स, यानी कि उस सेटअप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगते हैं, जो कई बार स्मॉल राइबोसोमल आरएनएस भी रहते हैं, या फिर किसी किसी में कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। तो ये सबका एक सेटअप है। व्हेन यू गो इनटू डिटेल्स
तो हमें समझ में आता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, उसके पास क्या क्या है. But these 13 mers and 9 mers have an affinity to bind these polymerases, the molecules which usually start the DNA polymerization और DNA के नए strands का synthesis शुरुआत करते हैं. तो once they get attached to their, जैसे दोनों strands separate हो जाते हैं, separate होने के बाद हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि कौन 5 to 3 है और कौन 3 to 5 है. अब ऐसा कहा जाता है कि दोनों साइमल्टेनियसली ही रेप्लिकेट किए जाते हैं. अब प्रोकैरियोट्स में जो सर्कुलर डीएनए है वहां पे ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक ढंग से समझा नहीं गया है. बट जैसे कि एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स होना मुश्किल है क्योंकि एक मॉलिक्यूल सर्कुलर है तो वो कैसे चलेगा. दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ लिया, एक को इस तरफ जाना है और एक को इस तरफ जाना है, तो वो मॉलिक्यूल कैसे मैनेज करेगा. तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मोड्स डिटेक्ट किए गए. एक तो होता है सिग्मा मोड है जिसमें क्या है कि निक देके कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन बनती जाती है, यानी कि ये सर्कुलर डीएनए था, उस सर्कुलर डीएनए में से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और वहां से क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो 5-3 के डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वो नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता रहता है, वो उस गोले से बाहर आता हुआ नजर आता है, इसीलिए हमें वो एक जैसे सिग्मा फॉर्मेट में नजर आता है. तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स सिग्मा फॉर्मेट फॉलो करते हैं रेप्लिकेशन के लिए. और कुछ कुछ में दिखता है कि एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रहा है तो वो लूज्ड अप हो जाता है, वो अगले स्ट्रैंड से अलग हो चुका है, तो हमें वो सर्कल के अंदर बीच में एक लाइन जैसे नजर आती है. इन केस ऑफ हम यदि किसी रेप्लिकेशन प्रोसेस को बीच में रोक के उसको फोटोग्राफ करते हैं तो वी फाइंड एक सर्कुलर डीएनए के बीच में एक लाइन नजर आती है जो थीटा से रिजेंबल करता है. हम उसको बोलते हैं कि थीटा टाइप ऑफ थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. और फिर मैंने बताया था कि जैसे दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स सर्कुलर वाले ऐसे हैं, वो दोनों अलग हो गए, लेकिन एक रेप्लिकेट हो रहा है, एक रेप्लिकेट नहीं हो रहा. जो रेप्लिकेट हो रहा है वो जैसे मान लीजिए साइड में आ गया ऐसा, तो हमें वो ऐसे डी जैसे नजर आता है, एक डी बन गया है, अटैच नहीं होता. जैसे सिग्मा में कैसे कि वो कट होके बाहर निकल जाता है और एक स्ट्रेट लाइन बनने लगती है. जैसे ही पूरा का पूरा सर्कल रेप्लिकेट हो गया तो वो फिर से निक आता है, वो स्ट्रेट लाइन कट जाता है और लाइगेस नाम का एक एंजाइम जो है उन दोनों एंड्स को जोड़ देता है, तो एक नया सर्कल क्रिएट हो गया. तो लाइकवाइज ये अलग अलग मोड्स हैं. बट टू बिगिन विद, जैसे ही पॉलीमरेज वहां अटैच हुआ सबसे पहली बात है कि एक दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पॉलीमरेज का काम है न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में जोड़ते रहना और एक नया स्ट्रैंड की सिंथेसाइज करना. बट लेकिन ये स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कौन करेगा टू रीड दैट, क्योंकि वो दोनों स्ट्रैंड जब साथ में रहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री वो एक दूसरे को अटैच किए हुए रहते हैं नाइट्रोजन बेसिस, तो इनको अटैच डिटैच करने की जरूरत है. तो डिटैच करने के लिए जैसे कि हमारे पास मतलब कैसे धीरे है कि टूट रही है, ब्रेक हो रही है. एक सेकेंड है. अभी आ रही है आवाज जरा बराबर? ओके. तो हम बात कर रहे थे कि जब वो पॉलीमरेज या फिर वो जो मॉलिक्यूल जो डीएनए स्ट्रैंड्स को नए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करता है, इट विल फाइंड अ प्लेस जिसको हम कह रहे थे कि वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओरिसी, जहाँ पे 13 मर्स और 9 मर्स का एक कंसेंसस सीक्वेंसेस दिखते हैं जिसके मदद से वो पॉलीमरेज को वहाँ अटैच करवाता है टू द डीएनए मॉलिक्यूल, एंड दैट डीएनए मॉलिक्यूल will now get polymerized or new strands will be synthesized with the help of that polymerase enzyme.
ओके, दे हैव वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस। ये आप लोगों को पढ़ना है, मैं इसलिए कह रहा था कि एक बार आप लोग पढ़े होते तो वो थोड़ा सा इजी होता था आप लोगों को समझने के लिए। मैं बता जरूर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ो इसको, सिर्फ अभी एक आइडिया ले लो कि होता कैसे है। तो जैसे कि वो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड होना है, तो यू नीड टू हैव अनदर मॉलिक्यूल टू वर्क फॉर इट। एक दूसरा मॉलिक्यूल की जरूरत है जो उन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करे, ताकि वो पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो स्ट्रैंड्स को होल्ड करता हुआ और 13 और 9 वाली जगह पे अटैच होके उन स्ट्रैंड्स को एक कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड्स बनाता चला जाए, ताकि एक नया डीएनए मॉलिक्यूल हो जाए, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करते हैं। मिसलसन के एक्सपेरिमेंट है। तो तो हमें एक और मॉलिक्यूल की जरूरत है जो इन स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करेगा। उसका नाम किसी को मालूम है? ठीक, हेलिकेज नाम का एक एंजाइम है। हेलिकेज नाम का एक एंजाइम है जो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है। अब ये बात ऐसी है, एक और कुछ और टर्म्स भी आएंगे, कुछ और एंजाइम्स के भी नाम आएंगे। हम अभी उतने डिटेल्स में नहीं देख रहे हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं फिलहाल, फिर बाद में मैं आप लोग को वो वीडियो आपको एज अ रेफरेंस आप लोग को अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप समझ सकेंगे। देन वी वुड कंसिडर, वो वीडियो जब देखेंगे तब हम बताएंगे ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम ये है, ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, इस टाइप का पॉलीमरेज है, इतने टाइप के पॉलीमरेजेस होते हैं, उसमें से ये पॉलीमरेज ही यूजुअली स्ट्रैंड को फॉर्म करता है। और दूसरे पॉलीमरेजेस करते क्या हैं, वो कुछ पॉलीमर जो दूसरे टाइप के पॉलीमरेजेस हैं वो प्रूफ रीडिंग करते हैं। यानी एक बार नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री वे में ही बने हैं, इस सब को चेक करने के लिए भी दूसरे पॉलीमरेजेस होते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि भाई हेलिकेज हेलिकेज जो है वो अनवाइंड करने का काम करता है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करता है। तो वो जो फोर्क होता है जहाँ सेपरेट करना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डबल होंगे या फिर ट्रिपल होंगे, तो इनको ब्रेक करता चलता है, जिसके कारण स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। बट दैट सेपरेशन इज फॉर शॉर्टर टाइम। उसी टाइम में पॉलीमरेज वहां पहुंच जाता है और नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है, एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होनी शुरू हो जाती है। तो हेलिकेज एक एंजाइम था जो यूजुअली अनवाइंड करता है स्ट्रैंड्स को एंड लेट्स द पॉलीमरेज, जो एंजाइम जो सिंथेसाइज कर रहा है उसको, टू गो फॉरवर्ड। अब अब वो सपोज करिए कि अभी जैसे मैंने बताया, एक आपको सिग्मा वाला फॉर्मेट बताया, एक थीटा फॉर्मेट बताया, एक डी फॉर्मेट बताया। तो ये सब फॉर्मेट्स में क्या हो रहा है कि वो अनवाइंड करते हुए क्योंकि डीएनए सर्कुलर है, जिस पॉइंट से शुरू होता है वापस उसी पॉइंट पे वो पॉलीमरेज पहुंच जाता है। वंस इट रीचेस टू द सेम ओरिसी, ओरिसी पे पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेशन जो है वो रुक जाएगा। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट्स लाइक स्टॉप, कि मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो चुके हैं, दो बन चुके हैं, राइट। तो वो जो हेलिकेज था, हेलिकेज इज नाउ ट्राइंग टू अनवाइंड एंड इट इज गोइंग फर्दर। अब वो होते होते पॉलीमरेजेस जो है उनको सिंथेसाइज करता हुआ चलता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता रहता है एज पर द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑन द एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल। इस प्रकार से हमारी वो कंप्लीट जब हो जाएगा, जब वापस सेम ओरिसी पे ही पहुंच जाएगा मॉलिक्यूल रन करते हुए, तो इट विल गेट टू नो दैट नाउ माय जॉब इज ओवर, द स्ट्रैंड इज बीन डुप्लीकेटेड। सो अब इसमें ऐसा है कि कभी कभी होता है कि ये पॉलीमरेज यूनिडायरेक्शनल है किसी किसी एनिमल्स में, किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यानी एक तरफ से ही जाएंगे और खत्म करेंगे, जो भी स्ट्रैंड पर पकड़ा है वो 5 to 3 के डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ कुछ होते हैं जो बाइडायरेक्शनल रहते हैं, यानी उसमें दो दो मॉलिक्यूल्स लगते हैं, एक मॉलिक्यूल एक स्ट्रैंड पर पकड़ता है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे स्ट्रैंड पर पकड़ते हुए चलता है। ये भी ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। और कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि पहले एक को करता हुआ वापस आएगा, फिर दूसरी तरफ से दूसरा करता हुआ वापस जाएगा, यानी पहले क्लॉकवाइज में करके गया, फिर दूसरे स्टैंड को एंटी क्लॉकवाइज में पकड़ के गया, उसके लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा दूसरे स्टैंड के लिए। तो दैट वे वो मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट करता जाता है और ओडीसी पे पहुंचने के बाद उसको समझ जाता है कि नाउ माय जॉब इज ओवर, द होल स्टैंड हैज बीन डुप्लीकेटेड। ये यूजुअली प्रोकैरियोट्स में। अब इसी चीज को हम मान लो यूकैरियोट्स में देखने की कोशिश करते हैं। जब यूकैरियोट्स मतलब जहाँ पे यूजुअली डीएनए मॉलिक्यूल्स लीनियर हैं, सर्कुलर नहीं है, तो भी हमें समझ में आता है कि एक एंड से शुरू करो दूसरे एंड पे खत्म कर लो। अब एक बात आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज
सुन पा रहे हैं अभी फिर से? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बीच में कॉल आ गया। कॉल कॉल भी सुनाई पड़ता है क्या आप लोगों को? ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाता है। एनीवेज, तो हम क्या किए, हम बात कर रहे थे कि वो जब पूरे का पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा तो एक तरफ से करता हुआ एक स्ट्रैंड को कर देगा, फिर दूसरी तरफ से दूसरे स्ट्रैंड को भी करना है। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो एक साथ बाई डायरेक्शनल के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर दोनों एक साथ ही रेप्लिकेट करते हुए चले जाएंगे, इस तरफ पहुंच जाएंगे। किसी किसी में ऐसा भी पाया गया है कि एक तरफ से शुरू होता है एक मॉलिक्यूल, वो हाफ तक आता है, फिर दूसरे स्ट्रैंड को पकड़ के फिर वापस जाता है, फिर उसके बाद फिर वो दूसरी तरफ जाता है, फिर कंप्लीट करता है, फिर इधर से वापस आता है। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, बट इन बिटवीन जो स्टेजेस हैं जिसमें हमको या तो सिग्मा नजर आएगा या फिर थीटा नजर आएगा या फिर डी लूपर नजर आएगा। तो अब जो हम यू कैरेट्स की बात करें जिनमें यूजुअली लीनियर डीएनए है, उनके केस में भी उधर भी कुछ पॉलीमरेजेस यूज होते हैं जो कि नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे, एंड वहां भी एक हेलिकेज नाम का एंजाइम है जो उनको अनवाइंड करता चलेगा। अब ऐसा है कि जब यदि आप इमेजिन करने की बात है, यदि राउंड है डीएनए, सर्कुलर है, एक तरफ से अनवाइंड कर रहे हैं, ये बनता चला जा रहा है, तो क्या होगा कि सपोज करिए आप ये दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स सर्कुलर उसमें है, आपने अनवाइंड किया और नए स्ट्रैंड्स बनते चले गए, तो ये क्या है कि फोर्क जो रेप्लिकेशन फोर्क जो हेलिकेज के कारण जो अनवाइंड हो रहा है और पीछे से पॉलीमरेज उनको सिंथेसाइज करते चल रहा है, तो क्या होता है पीछे से फिर से वो वाइंड होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है कि वाइंडिंग अनवाइंडिंग जो है वो साइमल्टेनियसली एक के पीछे एक चलता रहता है सर्कुलर डीएनए में, तो वो कोई टेंशन नहीं क्रिएट करता, इट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। बट यू नो इन लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड, देयर आर प्रोमोटर्स, देयर आर एनहांसर्स हैं उसमें, या फिर हम बोलते हैं उनको बॉक्सेस बोलते हैं यूजुअली। तो जो बॉक्सेस मतलब वो भी ऐसे कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं, जैसे वो 13 और 9 में था वहां पे, वैसे यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कंसेंसस हैं, जो सिमिलर हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि डीएनए को यहाँ अटैच करना है पॉलीमरेज को और यहाँ से शुरुआत करनी है। तो बॉक्सेस कहलाते हैं, बस प्रिब्नो बॉक्स, ऑर्गेनस बॉक्स, बहुत सारे बॉक्सेस को डिफाइन किया हुआ है और उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को सेम चीज़ें एमएससी में भी रिपीट होंगी। एनीवेज, बट वी वुड सी इट, मैं आपको टेक्स्ट में सब कुछ दूंगा। अब जैसे ही लीनियर वाली केस में क्या हो रहा है कि व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज बीइंग अनवाइंडिंग इट। अब एक रस्सी है, जैसे आपने रस्सी देखी, सुतली देखी, जिसमें से दो तीन लॉक्स जो है एक साथ ऐसे गुथे हुए रहते हैं। आप किसी दो को ऐसे सेपरेट करने जाएंगे तो पीछे टाइट होता चला जाता है, तो वो टाइटनेस आती है। तो एक समय ऐसा आएंगे जब टाइटनेस आती है तो वो सुपर कॉइलिंग होती है, मतलब जो कॉइल तो है, आपने कभी करके देखिएगा, या फिर मैं कभी यदि हम लाइव क्लास देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस चीज को। यदि आप दो वायर्स को एक साथ ऐसे 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 डीएनए मॉलिक्यूल जैसे आपने उसको गुथ लिया एंड देन एक तरफ होल्ड किया और दूसरी तरफ से उन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने की कोशिश की, तो पीछे का पूरा जो डीएनए जैसे गुथा हुआ था वो बहुत टाइट होता जाएगा, और क्या होता है स्ट्रिंग जो है ना, जो स्ट्रेट स्ट्रिंग थी, वो ऐसे हो जाएंगे और ऐसे भी गुथने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक दूसरा एंजाइम है जो उसको कट देता है। और यदि हम ये लाइव क्लास किए होते तो आई वुड हैव शोन यू कि वो सुपर कॉइलिंग कैसे होती है। स्ट्रिंग्स को यूज करते थे हम, सुपर कॉइलिंग वी कुड सी। उसमें से एक जो पर्टिकुलर एंजाइम है इसको हम नाम पता लगा के बताएंगे, मैं भी नाम नहीं लूंगा। वो एक एंजाइम है जो इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड को कट करता है, निक देता है। जैसे ही स्ट्रैंड को निक दिया तो टेंशन रिलीज हो जाता है पूरा का पूरा। ये हम वी वुड हैव डन इट इन क्लास इफ वुड हैव अटेंडेड अ लाइव क्लास। तो हमने वो स्ट्रैंड्स को सुपर कॉइलिंग होने के बाद किसी एक स्ट्रैंड को जस्ट एक कट करते तो पूरे का पूरा टेंशन रिलीज होता है। तो देयर आर एंजाइम्स टू रिलीज द टेंशन, टू रिलीज द सुपर कॉइलिंग इन केस ऑफ नॉर्मल हेलिकेज जो अनवाइंडिंग शुरू करता है, राइट।
तो वंस वी रीच टू द एंड, अब एंड कैसे पहुंचेंगे? एंड पहुंचने के बाद अब यहाँ पे भी एक बात आ गई, जैसे कि हम सर्कुलर डीएनए की जब बात कर रहे थे तो उनके अलग अलग पैटर्न्स हैं, लेकिन लीनियर डीएनए में ऐसा है नहीं, स्ट्रेट अवे मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन है, दूसरा स्ट्रैंड जो है 3 to 5 डायरेक्शन है, तो ये कैसे चलाएंगे? तो इसमें देखा गया कि अब ये बहुत ही मुश्किल है समझने के लिए, यूजुअली इसी चीज को हम समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसा कहा गया है कि 5 to 3 जो होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि वो कंटिन्यूस बनता रहता है, वहां का नया स्ट्रैंड जो है उस बेसिस के, उस स्ट्रैंड के बेसिस पे एक नई स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनती रहती है, क्योंकि 5-3 डायरेक्शन है। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड के लिए ये 3 to 5 डायरेक्शन हो गया। जो 3 to 5 डायरेक्शन हो गया तो वो 3 to 5 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन नहीं होता, तो इट हैज टू डू इट इन 5-3 डायरेक्शन ओनली, उसी डायरेक्शन में ही कर सकता है। तो पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम जो दोनों स्ट्रैंड्स को होल्ड किया था, वो एक तरफ यहाँ 5-3 डायरेक्शन ने यहाँ तो कंटिन्यूस बनाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ तो 3 to 5 डायरेक्शन है, तो कैसे करेगा? तो क्या ऐसा करता है कि यहाँ से कंटिन्यूस गया और यहाँ छोड़ के यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ से यहाँ 5-3 डायरेक्शन में आया, फिर बाद में इसने छोड़ दिया, फिर ये आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे पकड़ के फिर से पीछे में आया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप समझने के लिए समझिए। मेरे हाथ दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर? सपोज लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है कि आप लोगों को राइट दिख रहा है, व्हाटएवर, जो मैंने उंगली की ये वाला जो स्टैंड है ये नीचे से ऊपर 5 to 3 डायरेक्शन है, और ये वाला हैंड का डायरेक्शन 3 to 5 है। अब जैसे मैंने कहा कि 5 to 3 डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये पॉलीमरेज जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स को होल्ड करता है। आई एम द पॉलीमरेज नाउ एंड आई एम लाइक लेफ्ट हैंड साइड में 5 to 3 डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये कंटिन्यूअसली पॉलीमराइज करता चलेगा। बट यहाँ का पोर्शन के लिए 3 to 5 है, 5 to 3 कैसे करना पड़ेगा? इसको उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा तो जा नहीं सकता, तो जाएंगे तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा फिर एक समय के बाद। तो इसीलिए क्या होता है, ये सामने चल रहा है, ये होल्ड करके सामने जाता है छोड़ के स्ट्रैंड को, फिर ये पीछे जाता है, ऐसा 5 to 3 डायरेक्शन में हो गया, फिर ये और आगे जाएगा, ये छोड़ के फिर सामने पकड़ता है, फिर 5 to 3 डायरेक्शन में करता है, फिर ये आगे ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, फिर ये स्ट्रैंड को छोड़ेगा, सामने जाके पकड़ेगा, फिर से ये यहाँ तक आएगा। तो कैसा होता है, ये टुकड़ों में बन रहा है, यहाँ एक टुकड़ा बना, यहाँ एक टुकड़ा बना और यहाँ एक टुकड़ा बना, तो इसी को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये क्या है कि टुकड़े बनते हैं, तो टुकड़ों को फिर जोड़ने का काम एक लाइगेज नाम का एंजाइम है, वो उन टुकड़ों को जोड़ता जाता है एक आध बीच में। लेकिन ये शुरुआत होने के लिए यहाँ पे एक हमें आरएनए का और डीएनए का कॉम्बिनेशन लगता है शुरुआत करने के लिए। कहाँ से शुरू होना चाहिए? लीनियर डीएनए में जब भी हमें रेप्लिकेशन शुरू करनी है तो वो उन्हीं पोर्शंस पे लगता है जहाँ पे, जैसे सर्कुलर में हमने ओरिसी की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमें बॉक्सेस हैं, यानी कि एक सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि वहीं से ही रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो लेकिन वहां से शुरू होता है, अब सोचिए कि एक एक लीडिंग है और एक लैगिंग है, तो क्या हर बार लैगिंग के लिए एक बॉक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि हम एक लीडिंग के लिए जो हमने बॉक्स को यूज किया और जहां से हम रेप्लिकेशन शुरू कर दिए, दैट इज इनफ फॉर दैट मॉलिक्यूल टू आइडेंटिफाई वेयर टू स्टार्ट। तो ये यहाँ से शुरू किया, इसने इस तरफ के जो पॉलीमरेज ने जो कि 3 to 5 डायरेक्शन है, उसने लूप को छोड़ा और सामने जाकर पकड़ा और ये ऐसा 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइज किया। ये और आगे बढ़ा तो इसने फिर से छोड़ दिया, फिर यहाँ तक गया, फिर आके जोड़ता चला गया, फिर ये और आगे गया तो फिर इसने यहाँ तक पकड़ा, फिर आके छोड़ा, तो 3 टुकड़े बन गए जैसे मैंने आपको बताया। इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये कंटिन्यूसली बनता नहीं, इसलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो कि 3-5 डायरेक्शन वाला है। लेकिन वही पॉलीमरेज एक साथ दोनों काम निपटाता है। लेकिन अभी सपोज करिए एक मॉलिक्यूल है, मैं तो अभी होल्ड करके बता रहा हूँ आपको कि ये सामने जा रहा है, तो ये छोड़ के सामने आता है, देन इट गोज बैक, तो ये भी तो कंटिन्यूस चालू है ना, तो ये दूर नहीं हो जाएंगे, मॉलिक्यूल में टेंशन आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल में टेंशन आ जाएगा तो मॉलिक्यूल ब्रेक होने के चांसेस। So to avoid that tension in that molecule and to get apart from each other, जो holding capacity है उसकी, तो देखा ये गया है कि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऐसा है कि ये जो स्ट्रैंड है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कर रहे थे, जो टुकड़ों में बन रहा था, वो टुकड़े बनने का एक ही एकमात्र ऑप्शन है, जिसमें यदि हम इस स्ट्रैंड को लूप में ले लें, इस स्ट्रैंड को हम लूप में ले लें, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे, वन सेकंड, सॉरी, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड था लैगिंग वाला, राइट?
हम इस लैगिंग वाले स्ट्रैंड को यदि मान लीजिए, ये देखिए ये यहाँ इस तरफ पिन है, ये समझ लीजिए ये 5 है और नीचे की तरफ 3 है, तो हमें यहाँ का तो ऐसा था ही पहले से, 5 to 3 जा रहा था, कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन इस तरफ का जो कि ऊपर की तरफ 5 है, नीचे की तरफ 3 है, लेकिन हमें जाना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो सपोज करिए मैं, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लूप फॉर्म में लाता हूं। मैंने ऐसे एक लूप फॉर्म में लाया, अभी आप समझने की कोशिश करिएगा। लूप फॉर्म में लेके आया मैंने इस स्ट्रैंड को, तो ये देखिए ये 5 है और ये 3 है। इस पोजीशन पे देखूंगा, इस पोजीशन पे जहां मैंने अभी उंगली लगाई, इस पोजीशन पे आप देखिए कि 5 किस तरफ है और 3 किस तरफ है। ये 5 है, ये 5 है, 5 की डंडी आ रही, 5 की डंडी, ये 5 आ गया, और ये 3 है, ये 3 है, ये 3 का एंड है, 3 का एंड है, 3 का एंड है, ये 3 का एंड ऊपर आ गया। समझ में आ गई बात? यानी कि मैं यदि लूप कर देता हूं इस स्ट्रैंड को, तो क्या होता है कि यहां यदि मैंने होल्ड किया, पॉलीमरेज ने यहां होल्ड किया, जैसे इसको होल्ड किया था, तो क्या होगा, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो मैं इसको स्ट्रेट वे ऐसा ही जा सकता हूं। जाने के बाद क्या होता है, यहां बनने के बाद ये स्ट्रैंड फिर से लूप फर्दर आगे चला जाता है, तो ये फिर से छोड़ के फिर ये पकड़ेगा, जैसे यहाँ छोड़ा ना, यहाँ पकड़ा, फिर से ये आगे बनाएगा, तो ये फिर और लूप आगे चला जाएगा। ये ऐसे 5 to 3 में ही बढ़ रहा है, लेकिन ये लूप होने के कारण ये हमें पॉलीमरेज को मेहनत नहीं करनी, पॉलीमरेज एक ही तरफ काम कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल में टेंशन नहीं आ रही। यहाँ का स्ट्रेट चल रहा था, यहाँ का मॉलिक्यूल जो है, समझ रहे बात को ना, ये 5 है ऊपर का, ये 3 है, राइट। अब मॉलिक्यूल को ऐसे आना चाहिए था पॉलीमरेज को, लेकिन अभी ऐसे कैसे आएंगे, यहाँ तो यहाँ इस तरफ जा रहा है। तो ये क्या है कि लूप फॉर्मेशन में जैसे ही आए, तो हमें समझ में आया कि ये 5 का एंड है, ये 5 का एंड है, यहाँ 5 का एंड नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। ये 3 वाला एंड था, ये 3 वाला एंड जो है ऊपर में जहाँ होल्ड किया वहां 3 एंड आ गया। तो अब कैसा है कि ये पॉलीमरेज को इसको होल्ड करना, इसको होल्ड करना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। फिर ये छूटने के बाद फिर ये जो लूप है ये ऐसा घूमता जाएगा, तो हमेशा 5-3 डायरेक्शन मिलता है। यहाँ तक लाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर यहाँ से लाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर यहाँ से लाएगा, हर टुकड़ों को वो जोड़ता जाएगा। तो ये प्रोसेस में आपको आई वुड बी लाइक posting you a video by which you would be understanding how exactly these loops are created in the lagging strand and how this single molecule will, the same molecule will do the process। मतलब जैसे आप देखेंगे मॉलिक्यूल को प्रोसेस करते हुए ना, पॉलीमरेज को नए स्ट्रैंड्स बनाते हुए, तो आप देखेंगे कि ये भी ऐसे चल रहा है और ये भी ऐसे चल रहा है, लेकिन इसमें जो चलना है ये छोड़ पकड़ना करता है, लेकिन इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो टुकड़े बनते जाते हैं क्योंकि लूप फॉर्म किया यहाँ पे उसने स्ट्रैंड का। तो ये थोड़ा समझना बहुत मुश्किल होता है, इवन जब हम पढ़ते थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये लूप्स कैसे फॉर्म करते हैं। सॉरी, अभी टाइम हो चुका है, हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज थोड़ा सा ट्राई टू रीड आउट अबाउट द कंटेंट, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी वुड हैव द वीडियो, ओके। या हाँ, सो आई कैन हियर यू, से ओके। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स हैं, सुब्रमण्यम वाली भी एक बुक है, लेकिन इफ यू कैन गेट अ बुक कॉल्ड कार्प, KARP, यस, ओके। यदि वो नहीं है तो यू कैन हैव दागिना वाला एंड, क्या नाम है, दागिना वाला एंड, दागिना वाला एंड तो नहीं, बिल्कुल बता, पवार एंड दागिना वाला, राइट। पवार एंड दागिना वाला, उसकी 2 सीरीज आती हैं, 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, माइक्रोबायोलॉजी बाई पवार एंड दागिना वाला, ऐसा नाम है शायद। उसमें भी मतलब वो क्योंकि इंडियन राइटर्स हैं तो हमें कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और एक और बुक है जिसका नाम है जीन, बेंजामिन लेविन की एक बुक है जीन करके, उसके 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज आती हैं। तो हम जब पढ़ते थे हमने शायद जीन 5 से पढ़ी थी, अभी मेरे ख्याल से 13-14 तक जा चुका है एडिशन उसकी। लेकिन बट यू नो व्हाट हैपेंस, ये कुछ बुक्स होती हैं ना, ये फॉर नाथोस की हैं। अब वहां पे कैसे ना कुछ लैंग्वेज ऐसी लिखी रहती है, द पॉलीमरेज शॉट्स इन एंड शूट्स आउट, तो ये जो टर्म्स है ना आपको समझ में आते नहीं, ये व्हाट इज शॉट इन, शूटिंग आउट, तो हमको शूटिंग आउट मतलब ये मालूम है, गोली मारना,
तो दैट वे ना उनकी लैंग्वेज थोड़ी अमेरिकनाइज्ड है, तो वी फेल टू अंडरस्टैंड। तो मैं तो कहूँगा पवार एंड दागिना वाला पढ़िए, उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाता है। देन गो टू शिफ्ट ऑन टू जीन हो गया, या फिर कार्प हो गया, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाल्टीमोर हो गई, क्या कुछ नाम है, एल से नाम है उनका। तो ये बुक्स को आप बाद में रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट गो थ्रू पवार एंड दागिना वाला के, मेरे ख्याल से वॉल्यूम 2 में है कि वॉल्यूम 1 में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वॉल्यूम 2 में है शायद, जहां तक रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो गो थ्रू इट। मैं वैसे भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अभी कुछ चीजें और आएंगी जब हम ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे, तब कुछ डिस्क्रिपेंसीज आएंगी जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में रहती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगा उसमें। ओके, सो विल सी यू टुमारो देन, बाय।